Hello class. Class, we were doing topic function. There are some other things there's a need to be discussed with you. So here I am start the topic function from this topic, and the topic is class. One thing I have told you is that class, now you see, observe that this two figure. I draw some figure here, and I will tell you whether this graph of of any function will be a function or not, right? Means it is y is equal to fx, it is y is equal to fx. There are some four graph are given there. So what is the condition is there? What is the criteria when we can say whether are they functions or not? So class, you see, if you draw one vertical line here and one vertical line also I draw here, okay? So for this, what does it represent? It represents class at the value of x1 we getting any one value of y1, right? On x1 we getting the value of y1, okay? And if you see here, the same thing also has happened here. At the point of x1 we are getting the value of y1. So this point will be x1 and y1. Okay? This point will be x1 comma y1, right? So class, we getting every image has a unique image inside B. It is the condition for a function. So that condition is satisfying here. So these are the graph of the function. And class, second, and class, after this, you see now these two figures, they do not represent a function, because for example, if you draw a vertical line here at this point x1, we getting there are two value of y. One is y1 here, it is y1 and it is y2. So at the point of x1 we getting two value of y. So it is not a condition of function. So this is not function. Same thing is also being here. At the point of x1 we getting the two value of y. It is y1 and it is y2. Okay. At the point of x we getting the two value of y. So they are not functions. So this is the way it is called a vertical test. Vertical line test. By this line we can say whether this graph represent function or not. Okay class, after this now I am going on the types of function, and firstly class, you have to understand the function, right? With the function also you can understand, and this all that graph of this function will help you to finding the domain and range. Okay class, so now class, I'm going to start the types of function. Class, now here I list all the types of function here which is given in your course. That is class, the first identity function. So as the name suggests you, identity means the input that's same as output, meaning so we do represent as, first I'll discuss here identity function. So class, y is equal to x, it is called a identity function. And if you draw the graph of this figure is, so this is the graph, y is equal to x, it is identity function. The y is same as x, and the domain of this function is all real number, and range is also all real number. Any number comes in the place of it, but whatever number comes as x, that is same as y. It's very simple thing class. It is the first thing. Now class, the second is constant function, and for the constant function you see class, constant function meaning is that whatever you have put the value in function, the value will be same as that constant. For example, you take y is equal to k, and the k is any constant. So here the domain is all real number, but the range is only k, right? For example, if you put 2, the value will be k. If you put 3, the value will be k, and so on, right? And the graph of this function is, for example, if this is k, if it is value of k, right? So it is the graph y is equal to k. This is the graph of constant function. It's very simple thing. So after this class, after these two functions, the next point is a polynomial function. So the polynomial function is it is as like, for example, third one is polynomial function. For example,
we take y is equal to a naught a1 x1 x to the power 1, a2 x to the power 2, and so on, an x to the power n, right? Means on power of the power of x, that should be whole number. It is the condition for polynomial function. For example, y is equal to, if you take a y is equal to ax square plus bx plus c, what is this? It is the quadratic function. It is degree 2. It is quadratic function. Y is equal to ax plus b. It is a linear function, degree 1. Okay, degree 1 linear, degree 2 highest power of 2. So this is quadratic function. Highest power of 3, it is cubic function, and so on. But for example, these also are the polynomial function. So these are the types of polynomial function: linear function, quadratic function, and cubic function, and so on. For example, if you write y is equal to x to the power 2, x to the power 2 by 3 plus 5 plus 2, whatever. So it is not polynomial function because the power of x is 2 upon 3 and 2 upon 3 is not whole number. So on every power of x, that should be whole number. Then we say it is a polynomial function. So this is the condition for polynomial function. Polynomial function which is of many types, linear, quadratic. So this is the linear function y is equal to x. It is also a polynomial function y is equal to x, and the graph is a straight line. Quadratic function, one graph I have drawn you. For example, if you draw the quadratic function x square plus b plus c, then it will be as like cup. Inverted u, it is the x square plus bx plus c, right, and so on. So class, the third one is rational function. Rational function, class, actually what the word suggests you, whatever the meaning was polynomial, what you have studied in class 9, that the same thing also is repeated here with this function. But now this is it is changed into a function. The next time is coming, that also you have seen in the previous so many classes, rational number. So whatever the condition for the which was a rational number, that the same condition now it is with rational function. Okay, so the rational function it is as like the function y is equal to, the fourth part is y is equal to fx upon gx, where gx does not equal to 0. What is this? It is the rational function, right? It is the rational function, fx upon gx, and that the same condition also it was a rational number, a upon b, where b does not equal to 0. That same thing is copied here. It is the rational function. After this, the next going on, these are the important, all are the important, but these are the important which we do use in our practice a lot. The next is modulus function, sigma function, and greatest integer function, right? So now I am going on the next the rest of the functions. Now close the next, you see the modulus function, number fifth point, modulus function. Modulus function. So far, class, whatever you have seen the mod in the previous classes. For example, some few things I am telling you. Now you see. For example, if you are one is absolute value, one is modulus. So absolute value, which always give you a scalar value, means a positive value. Absolute value of 0 is 0. Absolute value is -2 is 2. Absolute value is 5 is 5. So this was the absolute value, right? But now it is a function, a modulus function. It is also written in the same way, that is y is equal to modulus of x. It is the modulus function. If you break this part, and the modulus meaning x square, a positive value 0, the range of this function is from 0 to infinity, right? So the domain for modulus function is all real number. Every real number will come here, and the range of this function is 0 to infinity. So now I am going to giving you some few ideas. How do you compare the range value, domain value with the graph? Now you see the graph. Class, this is the x and y axis, right? So now if you draw the y is equal to mod x on the graph, then you will see one line will be drawn here and one line is drawn here, right? So this angle is
45 degree and this angle is minus 45 degree. Minus 45 degree. This thing I have explained you in the chapter of trigonometric functions in starting, right? Now you can see my video, right? So minus 45 degree. It is clockwise direction, so I take in the minus 45 degree. So both line inclined with the same angle with x-axis. This line representing y is equal to x. This line representing y is equal to minus x. Slope of this line is positive. Slope of this line is negative. ये तो क्लास आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया गया होगा कि अगर आप अगर कोई लाइन आपकी इंक्लाइन कर रही है, क्या कहते हैं, राइज कर रही है, तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा. और कोई लाइन डिक्लाइन है आपकी नीचे को आ रही है तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा. ठीक है. तो ऐसे यहाँ पर चलिए, ये जो कॉन्सेप्ट स्लोप का होगी मैंने आपको नॉलेज के लिए डिस्कस किया. अब क्लास इसको हम कैसे लिखेंगे? अब आपका ये क्लास ये होगा y इज इक्वल टू, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपका ये प्लस एक्स होगा और माइनस एक्स होगा. ये कब तक होगा? जब आपका x की वैल्यू मोर देन एंड इक्वल टू 0 होगा क्लास. इफ द x इज मोर देन एंड इक्वल टू 0, सो if x more than and equal to 0, so it is equal to x. And if x less than 0, it is minus x. Now you come on the graph. It is 0. In this part, the x is 0 and x is more than 0, right? So now you getting the y is equal to x जब आएगा जब x आपका 0 से greater होगा, right? So इस पार्ट में आपका x जो है वो 0 से बड़ा है और इस पार्ट में x less than 0 है. तो यहाँ पर x less than 0 है तो y is equal to minus x आ रहा है. तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी y की वो इसके अकॉर्डिंग आएंगी. यहाँ लिखा ना मैंने y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पर आप देखिए. और इस रेंज में जब x 0 से मोर देन होगा तो y इज इक्वल टू x के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज आएंगी. ठीक है. तो यहाँ की ग्राफिंग होगी y इज इक्वल टू x है, यहाँ की ग्राफिंग होगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स है. प्लस ये आपका मॉडल. जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप कैसे प्लॉट ड्रॉ करेंगे. जैसे कि आपने एक क्वेश्चन लिया, अब क्लास इसका डोमेन रेंज आपने ग्राफ से बना दिया. मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रहा हूं, y इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस x. आप यहाँ पर मॉडुलस x में लगा दीजिए माइनस साइन, तब क्या होगा? जैसे आप ले रहे हैं y इज इक्वल टू माइनस मॉड x. अब जो उसका ग्राफ क्लास होगा वो इनवर्ट हो जाएगा. राइट कमेंट डाउनवर्ड डालता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. क्लास यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा. तो अब यहाँ पर भी एंगल्स 45 ही ड्रॉ होंगे. एंगल्स वही होंगे 45 डिग्री एंड 45 डिग्री. प्लस माइनस होगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग. जैसे यहां पर ये एंगल अगर आपका पॉजिटिव है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया एंड सो ऑन. ठीक है. तो क्लास यहां पर क्या होगा? अब यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है. ठीक है. नीचे आप आ रहे हैं तो माइनस हो गया. तो क्लास ये y इज इक्वल टू माइनस मॉड. अब क्लास इसका डोमेन रेंज क्या होगा? देखिए डोमेन क्या है, x की सारी वैल्यूज ले रहा है माइनस इन्फिनिटी से ये प्लस इन्फिनिटी. पहले आप यहां पर आइए, इसमें आप देखा आपने ये 0 है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है. तो x की ये पूरा ग्राफ आपका ऐसे ही एक्सपैंड होता हुआ चला जाएगा. अब जब एक्सपैंड होगा तो x आपकी सारी वैल्यूज ले रहा है, तो आप देख रहे हैं डोमेन इज रियल नंबर. रेंज क्या है? अगर आप y एक्सिस को देखें तो y एक्सिस के जो अबव वाला पार्ट है, अबव द एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट है, खाली उसी पार्ट में ग्राफ ड्रॉ हो रहा है. ठीक है. तो इसका रेंज जो हो गया वो हो गया 0 टू इन्फिनिटी. 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 में इंक्लूड हो रहा है, 0 से प्लस इन्फिनिटी हो गया. आप यहां पर आइए, अब इसमें x आपका सारे एक्सिस को ले रहा है, जहां जहां एक्स एक्सिस जा रही है वहां वहां ग्राफ जा रहा है. तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन इज ओनली अ नंबर. और आप रेंज की बात करें तो जो इसका क्लास रेंज होगा वो आप देख रहे हैं नीचे को आ रहा है ना, और नीचे क्या होता है, ये y एक्सिस आ रही है, ये आपकी जा रही है माइनस इन्फिनिटी में, y एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है. तो जो इसका रेंज हो गया वो आपका हो जाएगा 0 टू माइनस इन्फिनिटी. ठीक है. मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0, ये यहां पर हम जा रहे हैं. इस रेंज में आपका ये इसकी रेंज आ गई. मैं एक और एग्जांपल लेता हूं. बस अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी. जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे फिगर कैसे ड्रॉ. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक और फिगर ले रहा हूं. फॉर एन एग्जांपल मैं नेक्स्ट ले रहा हूं y इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस 1. ठीक है. अब देखिए जो ग्राफ के जो मॉड के अंदर लिखा हुआ x माइनस 1, पहले आप उसको ले लो कि वहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है. तो यहां पर देखा आपने x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है.
अब आप क्या करेंगे, अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये 0 है क्लास, ये 1 है, ये 2 है, -1 -2 एंड सो आप जानते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब आप 1 पर आए, 1 पर आके आप सेम ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ये बेटा हो गया y इज इक्वल, क्लास हो गया y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। अब इसके अंदर दो वैल्यूज ओपन होंगी। पहला ओपन होगा y इज इक्वल टू प्लस x माइनस 1 और एक होगा y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1। जब इस पूरी चीज की वैल्यू 0 से मोर देन होगी, x माइनस 1 की वैल्यू मोर देन 0 होगी, तो ओपन होगा प्लस x माइनस 1। और जब x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, सॉरी लेस देन 0 होगी, तो आपका होगा माइनस x माइनस 1। तो ये जो ग्राफ है ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1 और ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1। आप ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। तो इसके क्लास अंडरस्टैंडिंग हो गया, क्लास अंडरस्टैंड। अब इसका रेंज क्या आ रहा है, इसका रेंज आ रहा है देखिए 0 से आ रहा है, यहां पर देखिए y 0 है यहाँ पर और y ऊपर चला जा रहा है, प्लस इंफिनिटी है। तो इसका जो रेंज हो गया वो आपका हो गया 0 से प्लस इंफिनिटी, ये इसका रेंज हो गया। अब डोमेन की हम बात करें तो डोमेन में क्लास देखिए जहां पर एक्स एक्सिस एक्सपैंड कर रही है इधर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ग्राफ भी एक्सपैंड कर रहा है, तो डोमेन आपका हो गया ऑल रियल नंबर। द वैल्यू आंसर इज सेम, दिस इज आंसर। अगर आप ले रहे हैं y इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x फॉर एग्जांपल, सेम वर्किंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप कर लीजिए, आप ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये 1 है क्लास, यहां पर आप ऐसे आ जाइए, क्या आपका हो गया, होगी क्लास अंडरस्टैंड। तो ये क्लास मॉडुलस फंक्शन बारे में मुझे बताना आपको जरूरी था, ये मैंने आपको शेयर किया। क्लास नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। इट इज आल्सो अ वेरी सिंपल थिंग। सिग्नम फंक्शन व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग, क्लास इसमें आपके 3 वैल्यूज आती है, एक आती है 0 1 और -1। तो अगर क्लास इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आप वैल्यू 1 आएगी जब x 0 से, अगर x की वैल्यू 0 से मोर देन तो वैल्यू इसकी 1 आएगी, और अगर x की वैल्यू 0 से इक्वल है सो द आंसर इज 0। व्हेन x लेस देन 0 इट इज -1। इट इज कॉल्ड अ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम वर्ड टर्म आया है सिंगल से, सिंगल सिग्नम, राइट। तो ये 1 -1 और 0 मिला, ये 3 वैल्यू खाली इसकी आती है। तो इसका जो रेंज है वो ऑलवेज है। अब इसका डोमेन क्या हो गया, अब इस क्लास का डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और जो इसका रेंज होगा वो होगा आपका कर्ली ब्रैकेट -1 0 एंड 1। खाली -1 0 1 ही 3 खाली 3 आंसर आएंगे, ठीक है। बस ये आपका हो गया सिग्नम फंक्शन। और इसके बाद नेक्स्ट आपका एक और है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के अंदर पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि इसके अंदर ये 4 फैक्ट्स हैं। अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो आप सम टाइम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उसको आप इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज, अगर कोई x आपका इंटीजर है, अगर वो मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो ब्रैकेट है क्लास होता है आपका रेक्टेंगल ब्रैकेट, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को, ठीक है। तो वो x के इक्वल आएगा। अगर x इंटीजर नहीं है तो जो वैल्यू आएगी वो x से लेस आएगी, ठीक है। भाई मैं आपको एग्जांपल करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर कोई x कोई k के इक्वल है और k के इंटीजर है, तो क्लास जो x होगा वो k और k+1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका x k अगर क्लास ये इंटीजर है और आपका x रियल नंबर है, और इस फॉर्म में लिखा हुआ है x plus k of greatest integer function that is equal to greatest integer function of x plus k। बस इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 इनपुट करते हैं तो उसका आउटपुट 2 आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2.1 करते हैं तभी 2 आएगा, ठीक है। और 0 है तो 0 आएगा। तो व्हाट वी हैव स्टडी, हम एक कंक्लूजन फाइंड कर रहे हैं। क्लास कंक्लूजन ये है कि आप जैसे कि 2.1 है, राइट, तो आप मैं थोड़ा सा एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4 एंड प्लस इंफिनिटी, -1 -2 एंड माइनस इंफिनिटी। क्लास अगर 2.1 है तो आप 2.1 आपने यहाँ पर प्लॉट किया, इट इज 2.1। आप जब आप 2.1 पर स्टैंड करेंगे, जब आप लाई करेंगे 2.1 पर, आप इमेजिन करिए, तो जो क्लास आपके लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट इंटीजर होगा, लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट इंटीजर होगा, इट विल बी द आंसर, ठीक है। 2.1 तक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो 2.1 तक अगर आप माइनस इंफिनिटी से आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिलेगा 2, सो 2 इज द आंसर। क्लास दिस इज द कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल
आप नेगेटिव में आ जाइए। जैसे आप यहाँ पर लाई कर रहे हैं, आपने लाई किया -0.5। अब -0.5 पे जब आप लाई कर रहे हैं तो आप 0 पर तो आए नहीं है, ठीक है। आप -0.5 पर हैं तो आप लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट में वैल्यू -1 मिल रही है, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा इट इज आंसर इज 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर या सॉरी -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर आप क्या होगा, आपका हो जाएगा -1। आपको लेफ्ट में देखना है, आपको लेफ्ट में कौन सा नंबर है, ठीक है। तो जैसे आप -1/3 ले रहे हैं, अब -1/3 0.3 होगा, तो 0.3 आपका -1 0 के बीच में लाई करेगा, सो द आंसर इज -1। दिस इज द आंसर। क्लास इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्लास ग्राफ में ये होता है जैसे कि 1 2 3 -1 and -2 and so on, और क्लास ये 0 है। जब इसका ड्राइंग करेंगे तो क्लास यहां पर तो 0 से लाई करेगा, बट जब 1 पे आएगा तो 1 पे हो जाएगा हॉलो, ठीक है। फिर आप 1 पे आप आएंगे तो यहाँ पर ये 1 है क्लास, ये 2 है। फिर आप 1 पे यहाँ पर आप करेंगे डॉट, जब आप 2 पे जाएंगे 2 पे आपका होगा हॉलो। जस्ट अब आप 2 पर आइए तो 2 पे यहाँ पर आप करेंगे डॉट और यहाँ पर आपका होगा हॉलो, राइट। क्लास इस तरह से फंक्शन ड्रॉ होगा। ऐसे आप लेफ्ट साइड आइए तो लेफ्ट साइड में क्लास यहाँ पर आपके डॉट होगा, जब यहाँ पर आएंगे तो ये हॉलो हो जाएगा। फिर आप उसके ये क्लास -1 है, यहाँ पर ये -2, जब -2 पे आप आइए तो यहाँ पर डॉट और यहाँ पर आएंगे तो हो जाएगा हॉलो, ठीक है क्लास। तो क्लास इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये इसकी ड्राइंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, और ये क्लास की वर्ड है। Class, now I am started the exercise, miscellaneous exercise on relation and function, and the question where the fx and gx is given, and we have to show that the fs function where g is not a function, right? So class, for to prove fs function, first we see the domain of x. Class, x is lying between 0 to 3, x lying between, class this function is called a piece function. It's not a piece, it's a piece part, because the function is divided in some part अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ x। जैसे कि यहाँ पर x आपको 0 से 3 से लाई कर रहा है तो आपका फंक्शन x² से आपको वैल्यूज मिलेंगी। जब आपका x 3 से 10 में लाई करेगा तो आपका फंक्शन हो जाएगा 3x, राइट। इस तरह से gx में भी है। तो क्लास अब देखिए, इसको जानने के लिए अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर x जब 0 है, x is equal to 0 या x is equal to 3 है, यहाँ पर x² मिल रहा है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। जब x पे आप 0 प्लेस करेंगे तो 0 आएगा, बिकॉज़ fx इज इक्वल टू यहाँ पर आप लेंगे x², ठीक है। और जब आप 3 प्लेस करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑफ स्क्वायर इट इज हो जाएगा 9। अब आप आइए जो आपका नेक्स्ट इंटरवल है, अब इस पे जब आप 3 प्लेस करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू 3 into 3 दैट इज 9 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपने 10 प्लेस किया तो 3 into 10 मीन्स आपको 30 मिल गया। तो अब क्लास आपने क्या अंडरस्टैंड ये किया कि 0 पे 0 है, 3 पे 9 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ भी 3 पे भी 9 सेम वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर 10 पे 3 मिल रहा है। तो आप एवरी एंड यूनिक, ये दो वर्ड आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं, एवरी एंड यूनिक सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो हियर एवरी इमेज या एवरी एलिमेंट, every x has a unique image in y. Every value of x has a unique image, right? Unique image। तो आपका ये हो गया फंक्शन। अब आप g पर जाएं तो gx में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप gx में आप लेते हैं x², ये किस रेंज के लिए, ये आपका क्लास 0 से 2 के लिए। अब आप यहाँ पर अगर आप रखते हैं g0 तो g0 पे आपको 0 मिलेगा, बट आप g2 रखेंगे तो 2 ऑफ स्क्वायर मींस इट इज 4। और नेक्स्ट क्लास अगर आप नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं gx का, gx इज इक्वल टू 3x। नेक्स्ट रेंज है आपकी, ये आपकी है आपका ये 2 से 10 के बीच में लाई कर रहा है। क्लास जब आप g2 प्लेस करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, और नेक्स्ट आप अगर 10 प्लेस करेंगे 3 into 10 मींस वैल्यू इज 30। क्लास प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर g2 में 4 आ रहा है, यहाँ पर g2 में 6 आ रहा है, राइट। सो ड्यू टू दीज टू changes the function g is the g is not a function because the two giving you two value, one is 4, one is 6, okay. So every and unique, both conditions are not being satisfied, so we say g is not a function. It's very simple problem class,
Now class, see the next problem. We have to find the domain and range for the two functions. One is root x minus 1 and one is modulus x minus 1, right? And finding the domain and range, first I take the first example. First function y is equal x minus 1. Okay. So class, the range of this function is what I told you, means whatever the thing is present inside the root, that should be equal to more than and equal to 0. So I take x minus 1 more than and equal to 0. It is x more than and equal to 1. Okay. So the domain is 1 to infinity. This is the answer, class. And for the range is that x minus 1 more than and equal to 0. Okay. It is as given. होगा तो यही ना, x minus 1. अब अगर आप इसका रूट लेते हैं क्लास, तो यहाँ पे रूट 0 0 ही होता है. ठीक है. तो नाउ इट इज y more than and equal to 0. तो क्लास जो इसका रेंज आ गया वो आपका आ गया 0 से इंफिनिटी. मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो 0 से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. नेक्स्ट आप देखिए y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1. ये मैंने अभी आपसे भी डिस्कस किया क्लास मॉडुलस फंक्शन में. अब आप इवन आप इसको कर सकते हैं. अब इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन क्लास हो जाएगा ऑल रियल नंबर. कोई वैल्यू भी आप इसमें इनपुट दे सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आप इसकी रेंज की बात करते हैं, तो रेंज आपका होगा 0 टू इंफिनिटी. ठीक है. कैसे? मॉड x माइनस 1 मोर देन और इक्वल टू 0. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ बातें आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई थी. और यहाँ पर मॉडुलस के अंदर जो भी होगा वो 0 0 से मोर देन होगा, राइट. तो मॉडुलस x माइनस 1 मोर देन और इक्वल टू 0 है, मींस y मोर देन और इक्वल टू 0. तो रेंज इज 0 टू इंफिनिटी. ओके क्लास एक क्वेश्चन और यहाँ पर आप देख लीजिए. मैं कराना चाहता हूं, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसमें क्लास आपको रेंज फाइंड करना है. डोमेन तो इसको रियल नंबर होगा. यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन में पॉजिटिव फंक्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव फंक्शन है. पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आपको पॉजिटिव मिलता रहेगा. तो इसका जो डोमेन हो गया वो तो आपका हो गया ऑल नंबर. कोई भी रियल वैल्यू आप इसमें प्लस माइनस 0 कोई वैल्यू भी अगर आप इसमें आप प्लेस करेंगे तो फंक्शन आपका 0 नहीं होगा, मतलब इंफिनिटी नहीं होगा. अगर आप 0 रखते हैं तो 0.1 दैट इज 0. तो 0 भी रियल वैल्यू, तो ये आपका रियल वैल्यू आपको देता रहेगा. तो डोमेन इसका हो गया ऑल रियल वैल्यूज. ठीक है. नेक्स्ट आप इसके रेंज की बात. इसका रेंज का एक मेथड है. क्या मेथड है क्लास? देखिए पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है. ये आपका हो जाएगा y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. आप फंक्शन पहले बनाइए एक्स स्क्वायर के लिए. ठीक है. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस y एक्स स्क्वायर टेकिंग कॉमन 1 माइनस y. दिस इज y एंड एक्स स्क्वायर इज y अपॉन 1 माइनस y. ओके क्लास, अंडरस्टैंड. अब क्लास आप क्या करिए यहाँ पर नेक्स्ट. अब हम एज वी नो एक्स स्क्वायर मोर देन और इक्वल टू 0 होता है. अब क्या देखिए ये इस पूरे क्वेश्चन का की लाइन है. अगर आप ये किए क्लासेस, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. हमको क्या, हमें आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि एक्स स्क्वायर हो या मॉडुलस मॉड ऑफ एक्स हो, ऑल मोर देन और इक्वल टू 0 होता है. मैंने आपको यूज किया यहाँ पर. अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? y अपॉन 1 माइनस y है. ठीक है. अब आप इसको यहाँ प्लेस करेंगे y अपॉन 1 माइनस y मोर देन और इक्वल टू 0. इसके बाद मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि जो डिनोमिनेटर में होगा उसके स्क्वायरिंग फंक्शंस के आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन ऊपर तो आ जाएगा, राइट. तो यहां पर अगर आपने क्या किया 1 माइनस y होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 0.1 माइनस y होल स्क्वायर. क्लास ये तो 0 ही रहेगा, 0 टू समथिंग 0. यहां पर ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ गया y ब्रैकेट 1 माइनस y आ गया. अब यहां से y फाइंड. अब क्लास देखिए यहाँ पर मैं वो सारे स्टेप कर रहा हूं जो मैंने इस सब आपको फर्स्ट वीडियो में यूज किए थे. ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया थे. अब क्लास के बाद देखिए क्लास पार्टीशन ध्यान रखिएगा. ये क्वेश्चन यहाँ पर ओवर हो गया, ये क्वेश्चन आपका अलग चल रहा है. ठीक है. अब नेक्स्ट इसके बाद देखो आप यहाँ पर आपको मिला y 1 माइनस y मोर देन और इक्वल टू 0. मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था ये चीज x माइनस a मैं लिख रहा हूं और x माइनस b. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. मोर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 0 मैंने एक्सप्लेन किया था. तो पहले यहाँ पर x पहले आ रहा है, नंबर बाद में आ रहा है. यहाँ पर 1 पहले आ रहा है और वेरिएबल बाद में आ रहा है.
तो पहले इसको आप माइनस कॉमन लो, जब आप माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई करोगे ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको पहले आएगा, अब इसको आप चलाएं तो बाद में यूज करूंगा। तो आप माइनस आपने कॉमन लिया, y माइनस वन मोर देन, जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो साइन निकला वो रिवर्ट हो गया, ठीक है। अब आप आइए कहां पर, x माइनस ए और x माइनस बी लेस देन एंड इक्वल टू 0। क्लास आपने नोट्स फिर से देखिएगा जो मैंने कल आपको सेट किए, कल जो मैंने आपको वीडियो एक्सप्लेन किया है। अब उसमें यहाँ पर x कहां से कहां लाई करेगा, x लाई करेगा आपका a से b में, ठीक है। अब आप यहाँ क्या है, यहाँ है आपका x माइनस 0 और x माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो y कहां लाई करेगा, बस y आपका हो जाएगा 0 से 1 के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे ये आपकी रेंज है, बट ये भी आपका फाइनल आंसर क्लास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने क्लास जब एक्स स्क्वायर बनाया था, नाउ इट इज y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। प्लस अगर आप y की वैल्यू 1 यहां प्लेस करते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और सबसे कम 0 इंफिनिटी हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंफिनिटी, तो रियल फंक्शन तो रहेगा नहीं। तो प्रॉब्लम क्या आई, तो यहां से हम 1 को हटा दें, तो जो y क्लास आप रेंज लेंगे, y लाई कहां से कहां लाई करेगा, y क्लास लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। तो इस फंक्शन के अंदर जब आप इस फंक्शन को ग्राफिंग करेंगे तो आप देखेंगे इसकी सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 1 इंक्लूड नहीं होगा। 1 मैंने किया है ओपन इंटरवल और मैंने 0 किया है क्लास क्लोज इंटरवल, क्योंकि क्लास